नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, जो अक्षर और मात्राएं हमने सीखी थी उसको रिवाइज किया था। वी हैड अ recap of the letters and matras in the first video. Today we are going to begin with our first worksheet of this year. Okay children, so this year you're going to enjoy learning the letters and words having those letters, plus this year is going to be really very easy. Don't think that Hindi is difficult. You can learn it very easily. So today we are going to learn 3 letters and the words having these letters. Okay, today we will be doing worksheets page number 1 to 4. Now take your worksheet 1, page 1. Did you see 3 letters given there? The first letter we will see letter dh. See letter dh. Did you see the letter dh? This is letter dh. Now last year you had learned letter d. This is d. Now look at me. Listen attentively. What am I saying? First, this is the, and the letter that you are going to learn today is dh. Is there any difference between the and dh? One is said, this one needs a little more power and energy. Okay, this is dh. Dh. Okay, now let us see the examples like dh. Dh say dhan. What do we call our earth? Okay, we say dharti. Dharti has many names beginning with dha. We say dharti, we say dhara, we say dharani. Everything means the earth on which we live. Dha, dhara, dharti, dharani, dharitri. It goes on and on. So what letter is this? This is letter dh. Say it again, dh. How do we write? See, look at this. ये देखो पहले क्या लिखना है. पहले देखो इंग्लिश में देखा जाए तो स्मॉल लेटर ई, देखा, पेंसिल मत हटाओ, उसके बाद उसको नीचे लेकर आओ सी, डोंट स्टॉप, टेक इट लिटिल लॉन्ग, स्टॉप, उसके बाद एक सीधी लाइन, उसके बाद है फिनिशिंग लाइन जो ऊपर है ध. नाउ लुक एट दिस. ये जो लाइन है इस पे टच नहीं होता है. द लेटर्स विच हैज अ सर्कल लाइक दिस, okay, you will notice that the ending line, the sleeping line is not covering that letter. Be careful when you are writing letter dh. Now we will go to the next page, that is, the next letter, that is letter bh. Letter bh is also very simple. This is letter bh. This letter also has a circle. So the sleeping line is not touching the circle. You are not supposed to cover the sleeping line. Okay. ये कौन सा लेटर है? bh. अब ये कौन सा लेटर है? ये तो पिछले साल तुमने सीखा है. ये कौन सा लेटर है? ये लेटर बताओ कौन सा है? ये है ब. ब से बहन, है ना? तो भ से भाई, ब से बहन, ब ह न. ये देखो मत, ठीक है, ये गलती से नहीं, इसमें हो जाता है, ध्यान मत दो. ब ह न बहन. अब ये क्या है? भाई. ये भी तुमने सीखा है पिछले साल, भाई, बहन, भाई. अब इसको जाकर तुमने अगर बाई बोला तो इसका पूरा मीनिंग चेंज होगा. When you say it as bai, what will happen? The meaning is changing. Bai, bai mane maid. Bhai brother hai. If you read it as bai, you're changing the meaning. The meaning is maid. How do we have to read this? We have to read this as bhai, bha. फिर से बोलो bha. Okay. Next, bha से और क्या है? रोज हम प्लेज में कहते हैं, हर वेडनेसडे हिंदी में प्लेज होता है, याद है?
हाँ, घर बैठे बैठे भूल तो नहीं गए। बोलते हैं ना, भारत मेरा देश है, भारत हमारा देश है, हम सब भाई बहन है। भारत, भ से भारत, तो आपको ये भी पता है भारत मने इंडिया, इंडिया इज माय कंट्री, है ना। भारत हमारा देश है। भा, भ, फिर से बोलो भ। अब पहले हमने आपको सिखाया था ध, अब क्या सीखा है? भ। अब नेक्स्ट लेटर इस वर्कशीट में देखो, ये है ऊ। क्या है ये? ऊ। ओके, ये थोड़ा लंबा खींचता है, इसकी एक पूंछ भी है, देखा? ऊ, इसलिए उसको लंबा खींच के बोलना चाहिए। अगर पूंछ नहीं है तो उसको कैसे पढ़ोगे? इसे कैसे पढ़ोगे तुम? ऊ, ये क्या है? ऊ। और ऊ के साथ, ऊ के पेट में मैंने देखो ये बना दिया। अब क्या हुआ? ये है ऊ, ऊंचा। हम रोज कहते थे ना ऊपर, ऊपर देखो, ऊपर, ऊपर क्या है? ऊपर माने अप, ऊपर, देखा? ऊपर। अब देखते हैं इससे बने इन शब्दों से, इन अक्षरों से बने कुछ शब्द और उनके पिक्चर्स देखते हैं। अब ये बता सकते हैं क्या चीज है? हाँ, इसमें लिखा है वेल्थ, देखा? WEALTH, वेल्थ। वेल्थ माने क्या है? धन। जिसके पास बहुत सारे पैसे, गाड़ी, बंगला, घर, वो ये सोना, उनके पास बहुत धन है। ठीक है? क्या आपके पास धन है? आपके पापा मम्मी ने धन जोड़ कर रखा है? ओके, धन मने वेल्थ। ये क्या चीज है? धन। ये पिक्चर क्या है? धन। अब ये क्या है? भारत। भ से भारत। अब ये देखो, ये राष्ट्रपति भवन है। भवन बिल्डिंग या हाउस। ओके, भवन बिल्डिंग या हाउस। भवन, इसे क्या कहते हैं? इसको सिर्फ राष्ट्रपति थोड़ी कहते हैं, इसको कहते हैं राष्ट्रपति भवन। कैसे? भवन नहीं होता है, भवन। फिर से बोलो, भवन। भवन माने घर या हाउस या बिल्डिंग। ये बिल्डिंग, भवन, बिल्डिंग, तीनों तरीके से बोल सकते हैं। अब इसमें हमने ऊ वाले चित्र नहीं लगाए हैं, वो अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे, क्योंकि उसके साथ ऊ की मात्रा जुड़ी हुई है। आज हम लोग सिर्फ ध और भ वाले शब्द पढ़ेंगे। चलते हैं। गिनो, पिछले साल जैसे गिनते थे वैसे गिनो, आज भी गिनो बैठ के। 4, नहीं तो गिनती भूल जाओगे। 5, ये हुई हमारी लाइनें, 5 लाइनें। जैसे पिछले साल लिखते थे, आज भी ऐसे ही लिखेंगे। कैसे लिखना है? ओके, देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। ध, याद है हमें फर्स्ट लाइन को टच नहीं करना है। सेकेंड लाइन से हम लोग इसे शुरू करेंगे। लेटर ध कैसे शुरू करते हैं? देखो, देखा? इसे नीचे लेकर आओ और सी बनाओ, थोड़ा लंबा खींचो। ये ऊपर तक नहीं गया है। क्या ये जो लंबा जो तुमने खींचा है, क्या यहाँ टच हो रहा है थर्ड लाइन में? इज दिस सी, लॉन्ग सी, इज इट टचिंग द थर्ड लाइन? नो, राइट? आफ्टर दैट, after you do this, you will draw a straight line. Now comes the finishing line, Shirorekha we call it, and this is letter ध. Shall we write again? फिर से देखो कैसे ध लिखना है। यहाँ से शुरू करो, ऐसे स्मॉल लेटर ई बनाया तुमने, उसके बाद फिर थोड़ा लंबा खींचो, ये है तुम्हारा ध। ओके, अब देखो अपनी वर्कशीट में देखो, ओवरराइट करने के लिए बड़े बड़े बॉक्सेस में नंबर्स लिखे हैं। तुम्हें स्टार्ट करना है ऐसे, उसके अंदर अंदर लिखो ध। देखा? 1 2 3 4 ऐसे करके 5 देखा तुमने? वो है लेटर ध। सेकेंड बॉक्स में क्या है? सेकेंड बॉक्स में है लेटर भ। कौन सा लेटर है ये? भ। उसमें उसके अंदर भी पेंसिल घुमाओ और लेटर भ लिखो। और लास्ट लेटर जैसे हमने पहले समझाया है, उस बॉक्स के अंदर है लेटर ऊ। कैसे बोलोगे? ऊ। ये क्या है? याद रखना, ये ऊ है तो ये पूंछ है, इसको लंबा खींचो, ऊ। ओके, हाँ। अब लेटर ध तुमने 5 लाइन्स में लिखना सीख लिया है। अब देखते हैं, अब लेटर भ लिखना सीखते हैं। कैसे लेटर भ लिखते हैं?
वो भी जैसे ध शुरू किया था वैसे ही इधर से स्टार्ट करो, ऐसे ऐसे, बस। उसके बाद म जैसे बनाओ, फिर ये है लेटर भ। याद रखना, मैंने जब पिछले साल कई बच्चों को लिखते देखा है, वो क्या करते हैं, पहले एक सर्कल बनाते हैं, फिर एक लाइन खींचते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके उसको जोड़ देते हैं। ये गलत तरीका है, दिस इज रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग। चिल्ड्रन ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू आर राइटिंग लेटर भ, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर, टर्न, लेट दिस touch here, see it starts here, this line touches over here, okay, where you had started. Okay, let me show you once again. It is like this, come down, take it up, go. Okay, this is what bha is. Now if this part is a circle, doesn't matter, you can write like this also, slightly circlish. I always get it this way or this way. Children, if it is round also, it is not a problem, but make sure it should not be plain. If it is plain, it is ma. There is a circle for bha. फिर से लिखना, देखो कैसे लिखते हैं 5 लाइन्स में। यहाँ से पेंसिल यहाँ रखो, उसे घुमाओ, ये है तुम्हारा भ। अब समझ में आया आपको भ कैसे लिखते हैं? ओके, अब देखते हैं ऊ कैसे लिखना है। अब ऊ, ओके, ऊ तो जैसे मैंने कहा ऊ, सॉरी, ये देखो, ये है ऊ, ये है ऊ। हमें क्या सीखना है? ऊ, ये है ऊ। कैसे लिखेंगे ऊ? ऊ, यहां से स्टार्ट करो, ये देखो, 4th लाइन को टच करके थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ। ध्यान रखना कि ऊपर जाके इसे टच नहीं करना, डोंट टच द 3rd लाइन, स्टॉप हियर, you understood? हाँ, अब यहाँ से not in the center, slightly below the 3rd line, you will keep your pencil and come down. ये है ऊ। ये इतना सुंदर नहीं बनाया ना, एक और बार कोशिश करते हैं। ये देखो, ये हुआ तुम्हारा ऊ। ऊन, ऊपर, ऊंचा, ऊ। ओके, ऊंट, सुना है ना, ऊंट, कैमल, ऊपर, अप, ऊंचा, ऊद। ओके, ये है ऊ। अब देखते हैं, अब आप क्या करेंगे वर्कशीट में, देखो ध, ब, ऊ, बार बार पढ़ो, ओवरराइट करो, फिर उसके नीचे जो 5 लाइनें हैं अच्छी हैंडराइटिंग में साफ और सुंदर लिखो। जैसे पिछले साल समझाया था, पॉइंटेड पेंसिल लो, ब्लंट पेंसिल से लिखने से क्या होगा, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आएगी, लाइंस का पता नहीं चलेगा, इट विल गो हियर एंड देयर। सो शार्पन योर पेंसिल प्रॉपर्ली, ट्राई एंड अवॉइड यूजिंग इरेजर, कॉन्सेंट्रेट इन व्हाट यू आर राइटिंग एंड कंप्लीट दिस first worksheet. So you will do one worksheet one day. Page 1 and 2 you will do today. Tomorrow you can start with page number 3 and 4. So now I am going to explain page number 3 and 4. In page number 3 and 4 we have words having dha and bha. Words having dha and bha. Now how do we write those words? You have heard me saying these words. Now let us see. Since you know I am not going to make colorful lines, I am going to use only one color and draw the lines. एक, गिनो मेरे साथ, 2, 3, 4 और 5। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, कोई बात नहीं, लिखने से मतलब है। देखते हैं कैसे लिखना है। पहला शब्द क्या है, पहला वर्ड क्या है, देखो, पढ़ने की कोशिश करो। पहला वर्ड है ध। सॉरी, हम तैयार नहीं है, यहाँ पर लिखते हैं ध। ध न धन, बोलो, ध न धन, ध न
धन। धन माने क्या है? बोलो धन क्या होता है? हमने पिक्चर भी दिखाया था, उसमें बहुत सारे कॉइन्स ऐसे रखे हुए हैं, दिन ब दिन बढ़ता जाता है। उन पैसों से आप घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ खरीदते हैं। धन माने वेल्थ, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ रिचेस, ओके, गोल्ड, कार, house, everything comes into dhan, that is known as dhan, dhana, dhan. Next है इधर, 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 सुनो, इधर देखो, इधर माने here, इधर माने क्या है? here. Next उधर, उधर माने क्या होता है? उधर there, उधर means there. हाँ, next किधर, किधर। आप पूछ रहे हैं मिस आपने पहले कहा इधर देखो, फिर उधर देखो, आप पूछ रहे किधर, किधर माने वेयर, ओके, व्हाट इज किधर? वेयर, ओके, इधर, इधर माने हियर, उधर माने देयर, किधर माने वेयर, ओके, फिर से बोलो इधर, उधर, किधर, एक और बार बोलो, इधर नहीं, उधर, किधर, समझ गए? हाँ, तो इसमें 4 शब्द लिखे हुए हैं, देखो, धन, धन माने बहुत सारा पैसा, इधर, इधर, उधर, अच्छा ठीक है, उधर देखो, नहीं उधर नहीं, किधर, पूछो हमसे किधर देखना है, किधर, किधर माने वेयर, ओके, धन, इधर, उधर, किधर। चलो अभी लिखते हैं, 5 लाइनों में से लिखते हैं, धन, धन, इधर, इधर, उधर, उधर। अब किधर के लिए लाइन नहीं है, फिर भी हम लिख रहे हैं, किधर, किधर। अब आपको क्या करना है? बोल बोल के लिखना है, नीचे नीचे, बार बार वीडियो देखो, समझने की कोशिश करो और देखो कैसे लिखना है 5 लाइनों में। इसे नीचे नीचे अपनी वर्कशीट में लिखते जाओ, बार बार पढ़ो। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो क्या है? नेक्स्ट है उसी वर्कशीट में भ वाले शब्द। भ वाले शब्द में है भवन। भवन मने हाउस, बिल्डिंग, घर, बिल्डिंग बड़ा सा। भवन। भारत, 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 इंडिया, भारत, इंडिया। भाई, भाई, भाई। उसके बाद अभी, अभी, अभी। छोटी की मात्रा तो आपने पिछले साल सीखा ही था। फिर से बोलो, भवन, भारत, भाई, अभी। फिर से बोलो, भवन, भारत, भाई, अभी। अब जल्दी जल्दी हम आपको दिखाते हैं इसे कैसे 5 लाइनों में लिखना। आप तो बड़े स्मार्ट हैं, आपको लिखना आता है। हम फ्री लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। अब बस देखो और लिखना सीखो अच्छी हैंडराइटिंग में। ओके, पहले है भवन, भवन, भवन। भारत, भारत। उसके बाद क्या है? ये लो बीच में, भाई, भाई। उसके बाद अभी। भवन, भारत, भाई तो आपको मालूम है। ये अभी क्या होता है? अभी, अभी क्या होता है? अभी मने नियर। ओके, ये वाला अभी जो है नियर, तो ये वाला क्या है? अभी, नाउ। ओके, सी द डिफरेंस। अभी, नियर, दिस इज नाउ। गॉट इट? ओके, अब वर्कशीट में ये वर्ड्स हैं आपके, बार बार बोलो और नीचे नीचे अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो और याद करो। हर बार नई वर्कशीट शुरू करने से पहले रिवाइज करो जो आपने पहले सीखा है। अगला जो ऊ वाला, ऊ और ऊ मात्रा वाले शब्द हम अगले इसमें सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, थैंक यू पेरेंट्स।